Hello everyone. A very good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today class, we are starting chapter number 3. The chapter name is Fiber to Fabric. Okay. In this chapter, we already learned about that wool and silk fiber. Okay. In previous class, we also understand about the wool and how we production of wool, what steps we use when we take a wool fiber. Okay, then after we started a new topic. The topic name is silk. Okay, and what is silk? Silk is we already read about that definition of what is silk. Silk is a fine, soft, and shining natural fiber obtained from cocoon of silk moth. Okay, and silkworm we get from silkworm. Silk we get from silkworm. Okay, and silkworm is other name is a caterpillar also. Okay, then after we read about the life cycle of a silk moth. Okay, here is you look at this picture, द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है पूरी किसकी है? सिल्क मॉथ की पूरी लाइफ साइकिल है। ठीक है, इन लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट वन इज एग, सेकंड वन इज कैटरपिलर और सिल्कवर्म में भी, एंड नेक्स्ट वन इज प्यूपा स्टेज। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज जहां पर एडल्ट मॉथ है, दिस इज अ सिल्क मॉथ। ओके, and first we study about the understand about the first stage. Okay, a female silk moth lay its egg on the leaves on a mulberry leaf. Okay, हमेशा सिल्क मोथ जो है, क्योंकि जो जब एग हैच होगा देन लार्वा कम्स आउट होगा, तो उसको फीड करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये कि उसको फीड किस चीज का करता है? मलबरी लीव्स का करता है। तो दैट्स व्हाई female silk moth lay their eggs on the leaves of the mulberry tree. Okay, then the egg hatch into larva and called caterpillar or silkworm. then after ये जो egg हैं वो hatch होते हैं, then बहुत सारे larva उनके अंदर से secrete होते हैं. This larva is called a caterpillar and silkworm. Okay, just like that. Okay, next next one is the silkworm feed very fastly on the mulberry leaves and grow fast. Okay, after 4 to 6 weeks they achieve their maximum size and stop eating. अब ये जो कैटरपिलर होता है बहुत फास्टली और लगातार कंटिन्यूअसली ईट करता है किस चीज को? दे फीड मलबरी लीव्स. ओके, एंड आफ्टर 4 to 6 weeks दे अचीव देयर मैक्सिमम साइज. जैसे जैसे ये ईट करते जाते हैं इनका साइज क्या है? धीरे धीरे बढ़ता रहता है. जब ये मैक्सिमम साइज के अंदर आ जाते हैं देन दे स्टॉप फीडिंग. ओके, देन caterpillar turn into a pupa stage. How it is happen? A fully grown silkworm attach itself to a twig and stop moving. अब ये जो कैटरपिलर है जो बहुत सारा फीड करके जिसने अपनी मैक्सिमम हाइट कर लिया ना, फर्स्ट थिंग तो क्या करता है? ये फीड करना स्टॉप कर देता है. ओके, देन आफ्टर ये अपने आप को एक ट्विंग से अटैच करता है फर्स्ट, and then it weave a cover around itself and its stage name is a pupa. अब ये अपने चारों तरफ एक कवर प्रिपेयर करने लग जाता है, इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं. The pupa starts secreting silk fiber from the gland in its head until it completely covered with them. अब ये क्या करता है? अपनी ग्लैंड में से सिल्क फाइबर को सिक्रीट करते रहते हैं और लगातार अपने आप को तब तक सिक्रीट करते रहते हैं सिल्क फाइबर को जब तक ये अपने आप को चारों तरफ से कवर नहीं कर लेते. आई थिंक इट्स क्लियर. द फाइबर हार्डन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड फॉर्म अ शेल लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द प्यूपा. द हार्ड कवरिंग इज नोन एज अ कोकोन. ये जो हार्ड कवरिंग ऊपर की तरफ बन रही है, दिस इज अ कोकोन. ओके, और जब हम कंप्लीट स्टेज की बात करते हैं, भाई बाहर आउटर कवरिंग है देन अंदर स्मॉल सिल्क वॉर्म है. ओके, so this stage name is a pupa. Okay, then further development of pupa occur inside the cocoon. और जो further development है pupa का वो कहाँ पर होता है बेटा? Inside the cocoon until it changes into a moth and emerges out of the cocoon. Okay, I think it's clear. Next, I share it a short video. In this video, a whole silk production, how it is happen, how silk fiber changes into a reeling process, and then after this yarn make a fabric. How it is happen? Look at this video. How silk is made. Silk on silkworm.
Okay, the happiest moments are what their acts are categorized and tested the impact. Happiest acts are placed in cold storage until they are hatched. Under normal conditions, the act has the will not feed only the leaves of very can their change color from gray to white. Okay. Then after when the start hatchback or marriage as the worm twist its head, it spin a double strand of fiber in a figure 8 pattern. Continuously 8 pattern में अपने head को move करके and construct a symmetrical wall around itself. Then the fiber has by and a soluble by pattern as ओके। साइरेसिन क्या था बेटा, मैंने आपको कल की क्लास में भी आपको क्लियर किया था कि जब भी सिल्क वर्म अपनी ग्लैंड्स में से जो लिक्विड सिक्रेट करता है, टू टाइप ऑफ प्रोटीन आर देयर। फर्स्ट वन इज साइरेसिन एंड सेकंड वन इज फिब्रोइन। फिब्रोइन क्या करता है, फाइबर, सिल्क फाइबर बनाने का काम करता है। ओके, एंड साइरेसिन एज अ गम वर्क करता है, जो इन फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करने का, स्टिक करने में हेल्प करता है। दैट इज द सेरेसिन फाइबर। ओके, दिस रिजल्ट इज द रॉ सिल्क फाइबर कॉल्ड द वेब। अब जिस तरीके से देखिए कितने सारे कोकून्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने आप को पूरा बाउंड्री में कवर कर लिया। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। इसके अंदर कोई वॉइस नहीं है बेटा, जस्ट पीपीटी है ये। ओके, आई थिंक आपको मेरी वॉइस से क्लियर हो रही होगी, इमेजेस सारी। ओके, नाउ the type of work is ended by the process of in which the cocoon are then after के some of the, अब यूं नहीं है कि जितने भी कोकून्स बने हैं हमने उन सब कोकून्स को क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। उसमें से हम कुछ कोकून्स को, some of the cocoon are preserved so that the pupa inside them and develop inside them and develop into moth for further breeding। इसमें से हम कुछ प्यूपा को सेव कर लेते हैं और उनको फर्दर ब्रीडिंग के लिए अपने पास में प्रिजर्व रखते हैं। एंड मोस्टली जो प्यूपा है उनसे हम सिल्क फाइबर बनाने में प्रोसेस में वर्क कर लेते हैं। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। some of the stuff inside them develop further if the failure is proceed used in the factory and which the cocoon are proceed in a silk thread। अब जो बचे हुए जो बाकी हैं वो आगे जो अपने साइज को प्रॉपरली इंक्रीज कर लिया, कैटरपिलर ने प्रॉपर कोकून का कलर साइज के अकॉर्डिंग उनको शॉर्टन करते हैं। देन आफ्टर इन कोकून को प्रोसेस किया जाता है किस स्टेज के लिए बेटा, थ्रेड स्टेज के लिए। इन द फेलियर ऑफ शॉर्टेड कलर एंड साइज, कलर और साइज के अकॉर्डिंग तो शॉर्टेड किया जाता है। सॉर्टेड मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉर्टेड मीन्स सेपरेट करना। ठीक है, अलग अलग कलर के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको शीप का एग्जांपल दिया था, लोही, मारवाड़ी, बाखरवाड़ी जो होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की, कलर की हमको वूल मिलती है, तो हम उनको सेपरेट करते हैं ना। कुछ कोर्स हेयर्स होते हैं, कुछ फाइन हेयर होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम उन वूल को सेपरेट करते हैं। उसमें भी शॉर्टिंग मेथड था सेम, जस्ट लाइक दैट कोकून भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमने तुषार सिल्क, मलबरी सिल्क, डिफरेंट टाइप के जो सिल्क होते हैं, तो उनको उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग एंड कोकून्स के साइज के अकॉर्डिंग उनको शॉर्टेड किया जाता है। ओके, एंड देन द कोकून मस्ट बी सोक्ड इनटू अ हॉट वाटर। अब उसके बाद में अब वो जो कोकून है उसको इस तरीके से वाटर के अंदर सोक किया जाता है, हॉट वाटर के अंदर, एंड लूजन द सेरेसिन। अब जो सेरेसिन है ना, जो फाइबर्स को आपस में स्टिक किए हुए, कनेक्टेड किए हुए, उनको इस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जाता है। ओके, देखिए, देखिए yarn पूरा धागा बन गया है ऊपर। ओके, देन आफ्टर रीलिंग में बी अचीव मैन्युअली एंड ऑटोमेटिकली। अब रीलिंग प्रोसेस जो है, जो ये थ्रेड है, इसको हमें रील में राउंड करना है पूरा, है ना, पूरा रैप करना है। तो ये दोनों तरीके से होता है, मे बी मैन्युअली
मैन पावर भी यूज होते हैं, मे बी ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू भी इसको यूज किया जा सकता है। द कोकून इज ब्रश्ड, ओके, एंड कोकून को ब्रश किया जाता है, then आप इसको थ्रेड की फॉर्म में चेंज करते हैं। देन आफ्टर इट इज थ्रेडेड थ्रू अ प्रोलेसिन आइलेट एंड द फाइबर इज रील्ड इनटू अ व्हील। आपने देखा होगा घर के अंदर आपकी मम्मी ये जो स्विंग मशीन के अंदर जो धागा यूज करती है वो एक रील्स के अंदर पैक होके आता है। जस्ट उसी तरीके से इस कोकून को भी रील्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। Then after resistant operator check the flows and filament as they read, distinct property to set and as each filament is nearly finished to drilled, a new fiber is twisted onto the thereby। अब ये जो yarn है इसको अदर फाइबर जो है उसके ऊपर ट्विस्ट करके thereby forming the one continuous thread। आपके घर पे कोई भी थ्रेड हो आप उसको देखेंगे कि वो बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स को ट्विस्ट करके बना हुआ है। ठीक है ना। तो फाइबर देखिए सबसे छोटी यूनिट होती है। ओके, एक सिंगल यर्न, एक सिंगल जो लाइन है वो फाइबर है, और उन फाइबर्स को ट्विस्ट करके हम कन्वर्ट करते हैं फाइबर को टर्न इनटू अ यर्न। उनको ट्विस्ट करते हैं आपस में, देन यर्न बनता है। देन उसको वीविंग के थ्रू, नीटिंग के थ्रू हम उसको यर्न को टर्न करते हैं फैब्रिक के अंदर। ठीक है। ये and the most like that, and that in our package into a bundle। ओके क्लास, आई थिंक आपको पूरा टर्म्स समझ में आए होंगे कि कैसे पूरी सिल्क प्रोडक्शन कैसे यूज होता है। ठीक है। तो हम सिल्क प्रोडक्शन में के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में फर्स्ट हम क्या करते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म करेंगे। ओके, देन आफ्टर वी टेक अ सेकंड पॉइंट, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। रियरिंग मीन्स, आई थिंक आपको क्लियर होगा रियरिंग मीन्स क्या होता है। रियरिंग मीन्स होता है कि हम जब सिल्क मोथ को पूरी तरीके से रियर करें, जैसे हमने शीप से हमें वूल लेनी थी तो हमने शीप को क्या किया था, रियर किया था। उसको जो भी फूड प्रोवाइड करना है, मे बी उसको प्रॉपर शेल्टर देना है, उसकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, तो सेम उसी तरीके से रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू ऑब्टेन कोकून, हमें सिल्कवर्म को रियर करना पड़ेगा कोकून को ऑब्टेन करने के लिए। देन आफ्टर इस प्रोसेसिंग लग जाती है, कोकून से हम कैसे सिल्क फाइबर बनाएंगे। देन आफ्टर सिल्क फाइबर को विविंग प्रोसेस के थ्रू सिल्क फाइबर टर्न होगा किसके अंदर, सिल्क फैब्रिक के अंदर। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क जो है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है बेटा। फर्स्ट इज rearing of silkworm to obtain cocoon, and second one is processing of cocoon to obtain silk fiber, and third is weaving of silk fiber to obtain silk fabric। Okay, first we started the production of silk in a detail. First, we understand about the artificial silk and pure silk. What is the difference between artificial silk and pure silk? Okay. First one is artificial silk. क्या होगा बेटा, synthetic fiber। फर्स्ट थिंग ये, इट इज मेड अप ऑफ अ फ्रॉम अ केमिकल। इसको किसके थ्रू बनाया जाता है, केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है इन फैक्ट्री। ओके, तो दिस इज अ आर्टिफिशियल सिल्क। एंड नेचुरल सिल्क, व्हाट इज नेचुरल सिल्क, वी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिल्क वर्म, वी गेट फ्रॉम अ सिल्क वर्म, ऐसा सिल्क जिसको हम सिल्क वर्म से ऑब्टेन करते हैं, गेट करते हैं। दिस इज अ नेचुरल सिल्क, आई थिंक। और आर्टिफिशियल सिल्क जो है उसका एक अदर नेम रेयन है। आपने रेयन नाम सुना होगा, रेयन इज अ आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, तो रेयन जो मटेरियल होता है वो आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है, जो इट इज मेड फ्रॉम अ फैक्ट्री विद केमिकल। ओके, अब हाउ वी डिफरेंशिएट विच वन इज अ आर्टिफिशियल सिल्क एंड विच वन इज अ नेचुरल सिल्क। फर्स्ट थिंग, नेचुरल सिल्क इज एनिमल फाइबर मेड फ्रॉम प्रोटीन। जो नेचुरल सिल्क है वो फाइबर का बना है, मेड ऑफ प्रोटीन, विथ प्रोटीन मे बी फाइब्रोसिस। ओके, एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म, एग्जांपल मलबरी सिल्क जो हमारे इंडिया में सबसे पॉपुलर है। नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल सिल्क इज मैन मेड फाइबर मेड फ्रॉम सेलुलोज एंड ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, एग्जांपल रेयन। हाउ वी डिफरेंशिएट द which one is a natural and artificial silk? First, we take a piece of natural silk fabric, and a second, take a piece of artificial silk. Okay, both burn both the fabric and observe the smell produced। आप दोनों फैब्रिक को बर्न कीजिए और उसको, इसकी जो स्मेल है उसको ऑब्जर्व कीजिए। द फैब्रिक दैट स्मेल लाइक अ बर्निंग हेयर इज नेचुरल सिल्क। जिसके अंदर जैसे हमारे हेयर्स बर्न हो जाते हैं उस टाइम पे जो स्मेल आती है ना,
जस्ट लाइक वैसी स्मेल अगर आ रही है तो दिस इज अ नेचुरल सिल्क। और वाइल द फैब्रिक स्मेल लाइक अ बर्निंग पेपर, अगर पेपर को बर्न करने जैसी स्मेल आती है तो दिस वन इज अ आर्टिफिशियल सिल्क। I think it's clear what is natural silk and what is artificial silk. Artificial silk मेन मैन मेड फाइबर है जो सेलुलोज और वुड पल्प के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। एग्जांपल इज रेयन। आर्टिफिशियल सिल्क को का अदर नेम क्या है बेटा? रेयन। रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क तो केमिकल्स के थ्रू फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और नेचुरल सिल्क हमें सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है। देन डिफरेंशिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उनको बर्न करेंगे। Did you notice any difference in smell while burning? Burn in a woolen fiber carefully. Does it smell burning artificial silk and pure? तो क्या होगा जब हम उसको क्या करेंगे, एयर बर्न हो जैसी स्मेल आएगी, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पीस इज अ नेचुरल सिल्क। एंड सेकेंड वन इज अ व्हेन हम उस सेकेंड पीस को अगर बर्न करेंगे, मे बी उसमें से प्रोड्यूस होती है बर्निंग पेपर जैसी स्मेल प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स क्या हो गया, द पर्टिकुलर fabric is made up of a artificial silk. Okay. Next one is in India, women are significantly involved in various kind of industries are related to silk production. These are rearing of silkworm, reeling of silkworm from cocoon and processing of raw silk into fabric by enterprise. They contribute the nation economic. China lead the world in silk production and India also ranks among the leading silk producing country. देखिए जो सिल्क प्रोडक्शन है वो भी एक पार्ट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज के अंदर, कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमी के अंदर। चाइना तो सबसे फर्स्ट तो सिल्क प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट नेम आता है चाइना का ही आता है। एंड इंडिया की भी एक इसमें रैंक है सिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज के अंदर। नाउ वी स्टार्ट हाउ वी प्रोडक्शन ऑफ अ सिल्क, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ओके, फर्स्ट सिल्क इज ऑब्टेन from cocoon of silkworm. Okay, for the purpose of silk moth are reared and their cocoon are collected to extract silk fiber. It involves the following process. Okay, first thing is for obtaining silk moth reared their cocoon collected to be silk thread. अब हम सबसे पहले हम सिल्क मोथ को reared करते हैं, पालते हैं उनके कोकून के लिए और उनके सिल्क थ्रेड को कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट rearing silkworm. Female silk moth lay 100 of egg at a time. The egg are stored carefully on a strip of cloth, paper, or sold to silkworm farmer. The farmer keep the egg hygienic condition. अब ये जो सिल्क मोथ के जो एग होते हैं ना, इनको स्टोर किया जाता है मे बी क्लॉथ के ऊपर, पेपर के ऊपर। ठीक है, अब फार्मर क्या करते हैं, इनको बिल्कुल हाइजेनिक कंडीशन में रखता है। इनको जो भी अंडर सुटेबल कंडीशन, जो भी इनको टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जो भी ह्यूमिडिटी रिक्वायर होती है, वो सब प्रोवाइड करता है। द एग आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग। ओके, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज bear a fresh crop of leaves. The larva called a caterpillar or silkworm eat day at night and increase enormously in size. तो इस टाइम पे क्या होता है, उसको प्रॉपर कंडीशंस में रखा जाता है। देन आफ्टर जो एग हैच होता है आप इन अ सुटेबल टेम्परेचर, देन लार्वा कम्स आउट एंड द लार्वा ईट एंड फीड mulberry leaves and we fresh crop of leaves. The larva called a caterpillar or silkworm each day and night increase enormously in size. अभी जो कैटरपिलर है कंटिन्यूस फॉर्म में ईट करता रहता है और अपने साइज को इंक्रीज करता है। ओके, देन द लार्वा, the larvae are kept in clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon. Okay. अब जो लार्वा है जिसने पूरा मलबरी लीव्स को ईट किया है, फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स जो है उनको प्रोवाइड की जाती हैं। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, ये जो कैटरपिलर है स्टॉप करता है ईटिंग को, ईटिंग करने को, एंड मूव टू टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू। बैम्बू ट्रीज की वो जो वहाँ पर ट्रेस प्लेस कर दी जाती हैं जब उनको रियर किया जाता है। देन कैटरपिलर स्टिक टू अ बैम्बू ट्रे इन द ट्रे एंड स्पिन कोकून, और कोकून बनाना स्टार्ट कर देते हैं। Okay, and after that tiny chamber of bamboo spin cocoon, sometimes small twins are provided in the tray to which the cocoon get attached. छोटी छोटी ट्विंग्स भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है जिससे वो उसके अटैच हो जाता है।
Next step, processing of cocoon to silk fiber. Second part. A pile of cocoon is used to obtain silk fiber. The cocoon are kept under the sun. After that हम क्या करेंगे, जो cocoon बन गया है पूरा silk fiber का, तो the cocoon are kept under the sun, उसको sun के अंदर में maybe boil करेंगे, maybe exposed of to steam, maybe steam में expose करेंगे, the silk fiber separate out, the silk fiber है वो क्या होगा, separate हो जाएगा. Then the process of taking out that from the cocoon from loose as a silk is called a reeling of silk. These silk fiber are taken out from the cocoon and unwound to get long thread of silk. This process is called a reeling of silk. What is reeling of silk? I repeat, the silk fiber separate out. First separate out करेंगे due to heat. Any type of it, sun heat, boil and exposed in steam. The silk fiber are taken out from the cocoon and unwound to get long thread of